پورے یورپ سے مجھے لوگ مبارکباد اور ملنے کے لیے میرے گھر میں آئے. تو میں نے ایک دن کسی کی کلپ سنا, کراچی کا ایک محمد شیخ ہے جو قرآن کا اسکالر ہے, اس نے ایک لفظ, تحفہ کراچی کا ہے, اس کا چینل ہے نا کینیڈا, وہ ہمارے ہی شہر کا تحفہ ہے بھائی. ہاں کینیڈا کا ہے وہ. یہ اس کا ایک جملہ تھا کہ اس کی ایک مفتی کے ساتھ بحث ہوئی, اس نے کہا کہ پورے توریت کس کو ملی, تو اس مفتی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا قرآن میں لکھا, اس نے کہا ہاں لکھا, اس نے مجھے دکھاؤ. تو اس نے کہا میں ابھی دکھا نہیں سکتا. تو اس نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ توریت موسیٰ کو دی ہے, مجھے اس ایک جملے نے ہلا کے رکھ دیا. اب بھائی میں 74 سال سے مسلمان ہوں, میں پریچ کر دوں کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں, توریت موسیٰ کو, انجیل عیسیٰ کو, داؤد کو زبور ملی, قرآن محمد رسول اللہ کو ملا. جب یہ 4 باتیں میں نے کی, پھر میں نے اپنے بڑے بڑے جو علماء ہیں ایران تک, میں ایران میں بھی زیارتوں کے لیے گیا ہوں, وہاں بھی بڑے بڑے علماء جن سے میری بات ہوئی. تو جب میں نے کہا کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ 4 کتابیں آسمانی ہیں, لیکن پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ توریت موسیٰ کو ملی, میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. میں نے 400-500 مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا, 2 سال لگائے, کسی سے بات چیت ختم, گھر میں بند ہو گیا. لیکن قرآن میں نہیں لکھا کہ توریت موسیٰ کو دی گئی. اس وقت جب میں نے یہ پڑھ لیا تو اس وقت میں نے پکا بالکل پرمننٹ, میں نے پھر شیعوں سے سوال کرنے شروع کر دیے. میں نے کہا کہ دیکھو ہم قرآن کو مانتے ہیں, تو حدیث بعد کی بات ہے, قرآن اللہ کا کتاب ہے, حدیث لوگوں نے لکھی ہے, پیغمبر کا نے کہا لوگوں نے لکھی ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو, اس کو دیوار پہ دے مارو. تو حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, شیعہ اور سنی دونوں مانتے. میں نے کہا شیعہ اور سنی کا ماننے کا دلیل یہ ہے کہ یہ سچی بات ہو گئی, قرآن اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا. پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ مریم جو ہے وہ سلام اللہ علیہ, وہ قرآن میں کہ وہ نساء العالمین ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر اس کے بعد آج تک 30 سال جن لوگوں میں رہا, خدا کی قسم آپ یقین کر لیں یار, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں یو کے میں اکیلا آدمی ہوں اس وقت, کسی آدمی سے کوئی سلام دعا نہیں. میرا فون جو ہے صرف 2 لڑکے, ایک لڑکا ہے جو جورجیا میں ہے, وہ بھی ادھر میرے جگہ کا ہے, اور اس نے اسلام چھوڑا ہے. تو اس نے مجھے بہت مبارکباد دی, سب کچھ کہا. وہ ابھی 30 سال کا ہے. میں نے کہا, اس نے کہا 74 سال میں تو آدمی کا دماغ نہیں کام کرتا, یہ آپ نے کیسے اسلام چھوڑ دیا؟ میں نے کہا لوگ کہتے سٹھیا جاتا ہے, میں سٹھیا نہیں ہوں. تو یہ بات لمبی ہو گئی, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. جی آپ 74 کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ نہ جان پائیں, رائٹ. اچھا آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ ای میل کریں مجھے, دیسی نیوز, جس کو بھی جس کا ای میل ہے, آپ ہمارے دوست ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, مجھے ای میل کیجیے گا. اچھا نہیں بھائی, میری انگریزی کمزور ہے, ای میل کیسے کروں؟ اردو میں تو بات کرتا ہوں, لکھتا بھی اردو میں ہوں. ابھی میں فیس بک پہ لائیو سن رہا تھا دیسی بھائی کو, تو پھر میں نے وہاں میسیج لکھے, وہاں اس ٹیم میں جانے کا پھر میں نے کہا ذہن میں آ گیا کہ یوٹیوب پہ جاؤ. یوٹیوب ایک دن میں نے کہا سنا تھا کہ انہوں نے فری کر دیا, اس کی ان کے چینل پہ جو مرضی کو جائے. تو بھائی آپ یقین کریں, میں اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی, اپنے اولاد کی قسم, اپنی جان کی قسم کھا کہتا ہوں کہ دیسی بھائی کی یہ میں کہتا ہوں خون کا جو آخری قطرہ ہے وہ بھی ان کے جوتی پہ قربان کر دوں. یار یہ آدمی کو بہت اسپیشل ہے, بہت اسپیشل آدمی ہے یہ. اور آپ کا نالج کو میں سلام کرتا ہوں گلزار بھائی, وہ میں نے سنا ہوا ہے, وہ خیر میں نے سچ والا چینل پہ جب میں گیا, جب میں نے اسلام چھوڑا سچ والے کے چینل پہ, تو سچ والا نے ایک کہا کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن محمد رسول اللہ کو دیا گیا ہے. تو میں چونکہ 400-500 مرتبہ قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ, تو چونکہ قرآن کے ساتھ میں شیعوں کو چھوڑ کے قرآن کے ساتھ ہو گیا تھا, تو اسی لمحے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. ہاں جی, اگر میں آپ کو بتا دوں کہ لکھا ہوا ہے قرآن میں, پھر ان سے نہیں یار, آپ پلیز ان کو دے دیں, ہم ان سے سیکھ رہے ہیں, پلیز آپ بات کرتے ہیں بھائی, کوئی غلام احمد نبی کا قرآن تو لکھا ہوگا, لیکن اس قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں آپ اپنی یار, آپ ان کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں, یہ منجن مناتے رہیں گے. آپ نے اتنی اچھی اسپیچ کی, اس کے باوجود بھی ان کو عقل نہیں آ رہی نا, تو ہم مزید ٹائم کو گلدار صاحب یہ تو بدتمیزی والی بات ہو گئی نا, عقل نہیں آ رہی ہے, تو میں آپ کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں بات. آپ بولتے ہیں مجھے برا نہیں لگے گا, نہیں تو آپ کو فرق نہیں پڑتا نا, کیونکہ جتنی کی عزت ہو وہ دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے. نہیں جب آپ اپنی عزت نہیں اپنے نظر میں, تو دوسروں کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. آپ بجائے ان کے لاجیکل جواب دیتے آپ منجن منائیں گے. ہم ان سے سیکھ رہے ہیں, ہمارے وہ بزرگ ہیں, ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اچھا. لاجیکل جواب وہ اس وقت سے بول رہے ہیں جس وقت سے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جواب کب دے کوئی, میں ان کو کاٹ کے جواب دوں؟ میں تو خاموش رہا ہوں, بیٹھا ہوں آپ کے پاس,
आपसे गुलजार साहब आपसे मेरी बात आइंदा नहीं होगी, क्योंकि मुझे आपके लेवल पे जाना पड़ेगा, और मैं आ जाए, अपने आप को आप मेरे लेवल पर आ जाइए। मैंने तो ऐसी मुझे कोई शौक नहीं है आपके लेवल पे आने का। नहीं देखिए, पीस फॉर यू भाई, मैं गुलजार भाई की तरफ से माजरत करता हूँ, वो ऐसे नहीं, वो तहजीब में ही बात करते हैं, वो कभी कभी फ्लो में कोई एक आधा लफ्ज आगे पीछे हो जाता है, आपने उनका बिहेवियर शायद नहीं देखा। अच्छा अब्दुल वाहिद भाई, मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे वैसे वालिद साहब की एज के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये सारी जर्नी सुन के, और यकीन करें मेरा दिल चाह रहा है आपसे रियल में मिलूं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बात। मैं कह रहा हूँ पाक पंजाबी में एक बात क्लियर कर दूं, मैंने बोला अकल नहीं आएगी, यार ये जुमला बिल्कुल ठीक है, मुझे आप बोलते हैं मुझे अकल नहीं आ रही कि मैं मुसलमान नहीं हो रहा, मैंने गाली नहीं दी, तो ये इमोशनल होके ना, इमोशनल नहीं हुआ करें प्लीज, रैशनल होके बात करें। मैंने कोई चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, बदतमीजी नहीं की, उन्होंने इतनी अच्छी बुजुर्ग ने बात की, तो थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, अकल होनी चाहिए किसी में भी, कि यार हम कब तक इस कल्ट के पीछे रहेंगे, कब तक औरतों पे जुल्म होता हुआ देखेंगे इस कुरान के जरिए। छोड़ नहीं गुलजार भाई, औरतों को भी छोड़ दो, ये मेरे भाई जो आपने इनको बात की है कि अकल की जो बात की है, मैं इन भाई साहब का नाम क्या है जरा मुझे ये बता दें। ये भी हमारे प्यारे भाई हैं, पीस फॉर यू है भाई। क्या नाम है? पीस फॉर यू, पीस फॉर यू, पीस फॉर यू। अच्छा पीस फॉर यू मेरे भाई, देखें मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कुरान में कितनी मरतबा लिखा हुआ कि अकल से काम लो? कुरान का चौथे हिस्से से ज्यादा हिस्सा है जो अकल को इस्तेमाल करने की दावत देता है। मैंने ये नहीं पूछा, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है मैंने याद किया हुआ ना हर आयत में कहाँ पे अकल का, मैं तो आपको अमूमन बता रहा हूँ कि चौथे हिस्से से ज्यादा आयत हैं जो अकल को इस्तेमाल करने की दावत देती हैं। तो ये बुराई की बात तो नहीं है ना, ये बुराई की बात तो नहीं है, कोई कहे कि आप अकल से काम लें तो ये बुरी बात तो नहीं है, आपकी तौहीन तो नहीं है ना। कुरान खुद कह रहा है 114 मरतबा, मैं आपको बता रहा हूँ कुरान में 114 मरतबा है कि क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, तो ये तौहीन नहीं है, ये कहना तौहीन नहीं है। नहीं अंदाज उनका देखिए, मैंने तो आपके सामने सिर्फ एक अभी दलील का तबादला हुआ है कि साइंस जो है वो सबूत, हर चीज जो हमारे मुशाहदे में आती है, साइंस ना भी माने तो उसकी एक हैसियत है, सिर्फ इतनी दलील दी अभी तक मैंने आपको, वो मैंने आपसे कोई तबादला ख्याल किया ही नहीं, वो कह रहे हैं आप अकल से काम नहीं लेते, जबकि मेरी आपकी बात ही नहीं। यार छोटे से बच्चे हैं जो इतनी नाराज हो रहे हैं यार, हम क्या मतलब स्नोफ्लेक मेंटालिटी है आपकी यार, छोड़ दो ना गुलजार भाई, गुलजार भाई मेरा ख्याल है ये इनका आपसे तारफ नहीं है, इसलिए मैं, मेरे भाई हैं वो, मैं इसलिए ये पता मैं हैरान हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट यार भाई, ये आपने मुझे थोड़ा ऐसे बोल दिया, आपने वैसे बोल दिया, वी नॉट इन द क्लासरूम यार, अभी बात हो रही है रैशनल लॉजिक की। मैं चीखूं आप मुझे गलत कहें, मैं गाली दूं आप मुझे गलत कहें, मैं पर्सनल अटैक करूं मैं गलत कहें, लेकिन बात अकल की हो रही है और सिर्फ आप नहीं सुन रहे। लेकिन ये मुझे इतना इंप्रेस कर रहे हैं, आप प्राइवेट चैट में अब्दुल वहीद साहब मुझे कोई कांटेक्ट देगा ठीक है, आपसे राब्ता करूंगा, बहुत आपके पास लग रहा है नॉलेज है। गुलजार भाई आप कुरान में जानते हैं ना, डिस्टर्बेंटोरिजिया क्या कहते हैं उसको, डिस्टर्बेंटोरिजिया रीजन, जी 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 वो डिस्टोपिया टूरिज्म, यस। कुरान के पास मेरा नंबर है, आप उससे नंबर ले लें, मेरा मोबाइल नंबर है, आप उनसे नंबर लें। मैं आपसे और गुजारिश करूंगा देसी भाई से कि देसी भाई आप मुझे नंबर दें, मैं प्राइवेट में आपसे बात, यार खुदा की कसम मेरा पाँव चाटने को जी करता है देसी न्यूज़ की। और गुलजार साहब आपके इसके आदम सीकर के नॉलेज की वजह से, और ये नहीं कि और कोई आप में खूबी है, आप में नॉलेज है, नॉलेज, मैं रिस्पेक्ट नॉलेज की कर रहा हूँ। क्रिश्चियन प्रिंस क्रिश्चियन है, खुदा की कसम जूतियां चाटने को जी चाहता है उसको, हर रोज उसकी स्ट्रीम में 2-4 आदमी इस्लाम छोड़ते हैं उसकी स्ट्रीम से। तो आप ऐसे करें कि मुझे देसी न्यूज का भी नंबर चाहिए, और गुलजार भाई देसी न्यूज से राब्ता कर लीजिएगा किसी तरह, फिर मैं आपसे कर लूं। तो मैं इनसे किस तरह फिर नंबर इनका किस तरह मैं इनको आपने मुझे मैसेज किया ना फेसबुक पे, तो उस पे मैं राब्ता कर लूंगा आपसे। फेसबुक मैसेंजर पे मेरा ज्यादातर कांटेक्ट रहता है, आप उसको मुझे मैसेज कर दें, मैं आपसे बात कर लूंगा। अच्छा फिर से बात कर लूंगा, फेसबुक पे मैं देसी न्यूज से राब्ता कर लूंगा, फिर आपसे भी राब्ता हो जाएगा। और आप दोनों के अलावा मैं भी फेसबुक पर हूँ, गुलजार एलिया के नाम से मेरी आईडी है। अच्छा, तो आप मुझे प्लीज मेहरबानी ये होगी कि आप मुझे ऐड कर लें, तो फिर मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि मेरी अंग्रेजी इसी तरह की है। आप असली नाम से तो नहीं है फेसबुक पर? नहीं, अब्दुल वाहिद के नाम से हूँ।
हाँ देखें आपका, हाँ मैसेज आज आ गया है, तो मैंने आपको देख लिया आपका मैसेज, थैंक यू। हाँ, तो मुझे सिर्फ आप लोगों से सीखना है। अभी जो मेरा अपना जो मिशन है कि मेरी अभी जो जितनी भी जिंदगी रहती है, मुझे से बात कोई देसी न्यूज का आ गया मुझे मैसेंजर पे, अच्छा मैंने यार पाक पंजाबी को इंटरप्ट किया था। पाक पंजाबी आप प्लीज बात कर लें, मैं थोड़ा सा उधर चला गया था जी। नहीं वो मैं तो बस इनसे कह रहा था कि इनको सलूट है, और बहुत ही जैसे आप लोगों का ख्वाहिश हो रही है ना मिलने की, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग है कि बहुत ही ठहराव है इनकी बातों में, इनके पीछे मेहनत नजर आ रही है इनकी बातों में कि एक इंसान ने जैसे मेहनत की हो। और मैं इनसे कहूंगा कि आप अगर ज़हन में आपके कभी ये आए कि यार इतने साल जो हैं मैंने तो ये गुमराही नहीं, वो आपकी जर्नी का हिस्सा थे। सफर, जिंदगी एक सफर है और सफर का ही असल मजा है, डेस्टिनेशन का मजा उतना नहीं जितना सफर का है। तो बहुत हम इंस्पायर हो रहे हैं। भाई मैं एक आपको मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं चूंकि अभी मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं आ रहे हैं ना। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं 1 साल से भाई खुदा की कसम ये उठा के कह रहा हूँ यकीन दिलाने के लिए, इसके अलावा और मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं जन्नत में रह रहा हूँ। वाह वाह। मेरी 74 साल जिंदगी जो है वो जहन्नम में गुजरी है, अभी 1 साल हुआ मैं जन्नत में रह रहा हूँ। अगर जन्नत में आप समझ सकते हैं तो इस वक्त मैं अपनी मिसाल आपको दे सकता हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं अभी पैदा हुआ और मेरी यही जन्नत है दुनिया। उसकी वजह क्या है कि मेरे ज़हन में जितने भी कबले थे, अभी ये भाई जो ये बात इन भाई के लिए, जो ये भाई साहब दूसरे हमारे हैं मुसलमान भाई जो हैं, हमें इनसे नहीं नाराज़गी है, इस्लाम से हो सकती है, इनसे क्या नाराज़गी है। कुरान की एक आयत है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 78। जब मैंने मेरे दिल में शकूक पैदा हुआ, ये आयत से कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, अकीम सलात लिदलूक शम्स इला गसक लैल व कुरान अल फजर इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा। ये जब मैंने आयत पढ़ी तो मैंने अपनी बेगम से ये कहा कि मैं कोई नमाज से मेरा दिल मशकूक होता जा रहा है, चूँकि सलात के मायने नमाज नहीं है, नमाज फारसी का लफ्ज़ है, इन्होंने सलात का तर्जुमा नमाज किया हुआ है, सलात के मायने ये है, नमाज है नहीं है। तो मैंने कहा जब ये मैंने आयत पढ़ी तो एक अब्दुल्ला तारक है, सैयद अब्दुल्ला तारक इंडिया के स्कॉलर हैं, वो भी बड़े अच्छे, तो एक दिन उन्होंने इसकी तफसीर बयान की, तो उस दिन तक मेरा सर पीटने को जी जाता है, या अल्लाह ये भी स्कॉलर कहलाते हैं, अपने कुरान के स्कॉलर कहलाते हैं। उस सलात कायम करो सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और सुबह को कुरान पढ़ना बड़ा ही सवाब वाला काम है। तो मैंने कहा सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक कौन सी नमाज होती है भाई? तो अब्दुल्ला तारक साहब जो इंडिया के हैं, उन्होंने कहा कि स्कॉलर ने, जो बड़े बड़े पहले स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा कि इससे मुराद है 5 नमाजें। उस वक्त मेरा दिल चाहता मैं दीवार के साथ टक्कर लगाऊं। मैं इस बात का जवाब दूं जरा, आपका काफी अरसे से बोल रहे हैं, काफी देर जी फरमाइए मैं सुनता हूं, आप फरमाइए। देखिए यही बातें बता रही हैं कि जिसने आपको कुरान समझाया उसने दुरुस्त नहीं समझाया। या आप, अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहता है किताब और हिकमत का जिक्र करता है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह जुमा में भी कहता है कि ये उम्मी रसूल आपको किताब और हिकमत सिखाता है। किताब के साथ अल्लाह ताला ने हिकमत का मजमून बांधा है। आप सिर्फ किताब की बात कर रहे हैं, किताब में ही लिखा है 5 का नहीं लिखा, अच्छा 5 मैं क्यों मानूं? जबकि अल्लाह ताला कह रहा है रसूल को इल्म है कि उसने आपको बताना है कि ये कैसे पैगाम उसने समझना है और आपको समझाना है। कौन से रसूल को? हर रसूल की यही बात है, अल्लाह ताला ने हर रसूल को किताब और हिकमत दी, कुरान में ये बार बार आया है। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी? यही कुरान। हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको, यही जो आप मोहम्मद की बात कर रहे थे ना, मैंने भी वो सुना हुआ है। तो यही मसला है, किताब अल्लाह ताला ने बतौर एक कुरान के लिए भी इस्तेमाल किया है, लफ्ज लिखने वाली किताब के लिए भी किताब इस्तेमाल किया है, तौरात के लिए भी किया है, अंजील के लिए भी किया है। हर वो आयन जो किसी नबी को उसकी उम्मत की जरूरत के मुताबिक दिया गया, उसको अल्लाह ताला ने किताब कहा है। और आयन को आगे समझाना, समझना, अल्लाह ताला से आगे कौम को समझाना, उसको हिकमत करार दिया है। तो ये अल्लाह ताला ने हर नबी को दी, उसकी उम्मत की उसकी जरूरतों के मुताबिक एक आयन दिया, कोड ऑफ लाइफ, और उसको समझना और समझाना, इसको हिकमत करार दिया अल्लाह ताला ने। अच्छा, हिकमत समझना समझाने को कहते हैं, हिकमत के मायने क्या है? उर्दू तो आप जानते हो, हिकमत किसे कहते हैं उर्दू में? हाँ जी, हिकमत ये है, देखें एक लफ्ज है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो। कौन सी रस्सी? अल्लाह की रस्सी कौन सी? रस्सी कौन सी लटक रही है? बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना, उस तरफ आ रहा हूँ ना। अब इसके लुग़वी मानी लेंगे तो कहेगा अल्लाह ताला की रस्सी कैसे हुई? क्या लुग़वी मायने ले क्यों? नहीं, मैं सिर्फ कुरान की बात कर रहा हूँ। हर लफ्ज के एक लुग़वी मानी होते हैं, मजाजी मानी होते हैं।
कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि लुग़वी मायने और मजाजी मायने होते हैं? यार एक देखे ना, अब अकल की बात हो रही थी ना, आपने भी अकल की बात की, तो ये मैं तो इसलिए अकल की रोक रहा हूँ बात है आपके जिसने बात आगे स्कूल ना में पढ़ा है। जाए मैं ना। बता रहा हूँ ना, हमने स्कूल में पढ़ा है, जब हम नसर जी पढ़ते हैं, जब हम जी नज़म पढ़ते हैं, तो उसके